ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، بھارت میں ووٹنگ جب ہوتی ہے تو اس میں کس قدر فیک ووٹنگ ہوتی ہے، جعلی ووٹنگ ہوتی ہے، ایک ہی شخص بار بار ڈالتا ہے، پولنگ بوتھ کو کیپچر کر لیا جاتا ہے، دادا گیری چلتی ہے، گنڈا گردی چلتی ہے، ایک دوسرے پر حملے۔ بھارت کے جب کبھی بھی جو کون سے بھی الیکشنز ہوتے ہیں اس میں اس طرح کی خبریں آتی ہیں۔ اتر پردیش کے فرخ آباد پارلیمانی حلقے میں آنے والی ایٹا ضلع کے ایک پولنگ مرکز پر ایک 17 سالہ نوجوان کو مبینہ طور سے بی جے پی امیدوار کے حق میں 7 مرتبہ فرضی ووٹنگ کرنے کے الزام میں حراست میں لیا گیا ہے۔ ساتھ ہی متعلقہ پولنگ مرکز کی پولنگ ٹیم کے سبھی اراکین کو معطل کرنے اور اس پولنگ مرکز پر اثر نو ووٹنگ کی ہدایت بھی دی گئی۔ سماجوادی پارٹی چیف اکھلیش یادو نے اس فرضی ووٹنگ سے متعلق ایک ویڈیو ٹویٹر ہینڈل پر یعنی ایکس پر شیئر کی تھی، اور کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے بھی اس سلسلے میں بیان شیئر کرتے ہوئے کہا، اپنی شکست سامنے دیکھ کر بی جے پی مینڈیٹ کو جھٹلانے کے لیے سرکاری نظام پر دباؤ بنا کر جمہوریت کو لوٹنا چاہتی ہے۔ اس فرضی ووٹنگ معاملے میں اتر پردیش کے چیف الیکٹورل افسر نودیپ رنوا نے ایک بیان جاری کر کہا کہ متعلقہ پولنگ ٹیم کے سبھی اراکین کو معطل کرنے اور ڈسپلنری کارروائی شروع کرنے کی ہدایت جاری کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ متعلقہ پولنگ مرکز پر اثر نو ووٹنگ کی سفارش الیکشن کمیشن سے کر دی گئی ہے۔ رینوا کا کہنا ہے کہ اتر پردیش کے بقیہ مراحل میں بھی الیکٹورل افسران کو ووٹرز کی شناخت کے عمل کو سختی سے انجام دینے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ صورتحال ویڈیو بھی بہت زیادہ وائرل ہوئی، آپ لوگ جانتے ہوں گے، اسی کے سلسلے میں بھی خبر آئی ہے۔ ادھر گجرات اے ٹی ایس نے ایک بڑی کارروائی انجام دینے کا دعویٰ کرتے ہوئے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ احمد آباد ایئرپورٹ سے ISIS یعنی داعش سے تعلق رکھنے والے 4 افراد کو گرفتار کیا ہے، جن پر دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہونے والے تھے، اس طرح کا الزام لگایا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چاروں ان لوگوں کا تعلق سری لنکا سے بتایا جا رہا ہے، یعنی کہ سری لنکا کے باشندے ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ گجرات اے ٹی ایس فی الحال چاروں کو نامعلوم مقام پر لے گئی ہے، اس سے پوچھ تاچھ کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک یہ پتہ نہیں چل سکا ہے کہ یہ لوگ کس ارادے سے احمد آباد ایئرپورٹ آئے تھے، اور گجرات اے ٹی ایس کی ایک بڑی کارروائی تو قرار تو دی جا رہی ہے، لیکن اس پر کس طرح سے ان کا الزام ہے اور کس طرح کے دہشت گردانہ کارروائیوں میں پہلے ملوث تھے، یا یہ مطلوبہ مشتبہ دہشت گردوں کی فہرست میں شامل تھے۔ آخر ایک خفیہ آپریشن میں 5 لوگوں کو کس طرح گرفتار کیا گیا، کیا خفیہ ان لوگوں کے پاس اطلاعات موجود تھیں، یہ ساری چیزیں اس وقت پوچھی جا رہی ہیں۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ IS خراسان سے منسلک تھے۔ ٹھیک اسی وقت گجرات اے ٹی ایس کو خبر ملی کہ 3 لوگ پور بندر سمندری راستے سے افغانستان اور وہاں سے ایران جانے کی کوشش میں ہیں۔ ناظرین گرامی، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں جو الزامات لگائے گئے ہیں کیا واقعی صحیح ہیں۔ جو کچھ بھی آپ لوگ جانتے ہیں ساری چیزیں تحقیقات کے بعد ہی سامنے آ سکتی ہے، لیکن یہاں کا میڈیا اس طرح کی جب گرفتاریاں ہوتی ہیں تو الگ الگ ناموں سے پکارتا ہے، دہشت گرد کہنا شروع، لیکن جب اس طرح کی بہت ساری ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب یہ بے قصور ہو کر کے الزامات ثابت نہیں ہوتے ہیں، رہائی ہوتی ہے، تو میڈیا اس طرح کے تذکرہ کرنے سے بھی چوکتا ہے، بتاتا نہیں ہے۔ اب اے ٹی ایس کی ذمہ داری ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ لوگوں کے سامنے لائے۔ ادھر ناظرین گرامی، خواتین کا لباس پہن کر کے چوری اور ڈکیتی انجام دینے والے ایک گینگ، جس کو چوڑی دار گینگ کہا جاتا ہے، وہ اس وقت تلنگانہ میں ایک فلیٹ میں چوری کرتے ہوئے ان کی CCTV کیمرہ فوٹیج اس وقت وائرل ہو رہی ہیں۔ دراصل یہ واردات حیدرآباد کے SR نگر کے زیڈ کالونی کے ایک فلیٹ میں انجام دی گئی۔ فلیٹ کے مالک وینکٹیشور راؤ نے پولیس سے اس خصوص میں کی گئی شکایت میں کہا کہ ان کے فلیٹ سے قفل شکنی کے ذریعے چوروں نے 4 تولے کے طلائی زیورات کے علاوہ 1 لاکھ روپے نقد رقم اور 1 لیپ ٹاپ کی چوری کر لی ہے۔ پولیس نے اپارٹمنٹ کی CCTV کیمروں کی فوٹیج کا تجزیہ کیا تو حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ خواتین کا لباس پہن کر یہ واردات انجام دی گئی۔
पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर चोरों की तलाश भी शुरू कर दी है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस तरह चूड़ीदार गैंग इससे पहले भी जो है वो सुर्खियों में आया था और किस तरह से वो जो है घर घर में चोरी और डकैती की वारदात अंजाम देकर के किस्म के खौफ का माहौल बनाया था। अब क्या ये उसी चूड़ीदार गैंग से वाबस्ता हैं या कोई नई गैंग है, इस बात को लेकर के तेलंगाना की पुलिस छानबीन कर रही है। नाज़रीन ग्रामी, ईरान के अगले सदर कौन? ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे में जहां बहक होने के बाद अब मुल्क के नायब सदर मोहम्मद मुखबिर दसफोली इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर की जिम्मेदारियां संभालेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर मौसम की खराबी के बायस तबरेज शहर में जो गिरकर तबाह हुआ था। हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में ईरानी सदर के हमरा वज़ीर ख़ारिजा हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियान, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई के तर्जुमान और ईरान के सूबे तबरेज़ के गवर्नर के अलावा दीगर आला अहदेदारान भी सवार थे जो इस हादसे का शिकार हो गए हैं। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि इस हादसे को जो है अलग अलग नज़रिए से देखा जा रहा है और इसके जो तबसरे हुए थे मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपके सामने रखा था। एक अहम तरीन वजह जो उनके इस वक्त जो है हादसे को लेकर के जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी साहब के काफिले में कुल 3 हेलीकॉप्टर थे। 2 हेलीकॉप्टर बहिफाजत पहुँच गए, ताहम सदर का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। ईरान में एक तबका इसके पीछे साजिश का शिबा कर रहा है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। अमेरिकी सेनेटर चिक शोमर ने एक बयान में कहा कि इनकी खुफिया एजेंसी से बातचीत हुई, अभी तक किसी शिबा, किसी साजिश का शिबा या उसका कोई सबूत नहीं मिला। अलबत्ता जो इसमें पूरी तरह से जो है वाक़े पर गहरी नज़र रखे हुए है। दरअसल ईरान के सरकारी टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सदर रईसी कसकलासी और खुदाफरीन डैमों के इफ्तिताह के लिए अज़रबैजान गए थे। उसके बाद वो तबरेज़ शहर जा रहे थे जो वहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। इस दौरान हेलीकॉप्टर रास्ते में गिरकर तबाह हो गया और जब ये तबाह हो रहा था तो फिर उनके साथ मौजूद हेलीकॉप्टर जो आगे पीछे थे वो कहाँ थे, उनके साथ में थे और जो वीडियोग्राफी हुई है और जो जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं ये सब किसने निकाला। एक ऐसे सवालात और एतराज़ात हैं जो इस वक्त BBC के हवाले से भी बहुत सारे सामने आ रहे हैं और बड़े बड़े अखबारात भी इस चीज़ को लिख कर कि जो है यही इसको कहीं ना किसी साजिश का नतीजा बताया जा रहा है। अंदरूनी सतह पर कोई जासूस तो नहीं था, इस बात को लेकर के भी जो है अलग अलग बहस शुरू हो चुकी। BBC की एक रिपोर्ट जब पढ़ा गया तो उसमें पता चला जिस जगह हादसा पेश आया वो पहाड़ी इलाका है और वहाँ काफ़ी धुआं और धुंध छाई हुई थी, रोशनी भी 5 मीटर से ज़्यादा नहीं थी। ऐसी सूरत हाल में जिस जगह पर मिली है वो भी जगह बड़ी मुश्तबा मानी जा रही है। ऐसी सूरत हाल में क्या वाकई में ईरान इस साजिश के पीछे का पर्दा हटा पाएगा, क्या इसको पूरी तरह से तहकीक कर पाएगा? इस तरह की अलग अलग तरह की जो है तफसीरें इस वक्त लगातार ज़ोरों से जो है इस वक्त सोशल मीडिया में पढ़ने को भी मिल रही हैं और ईरान की मुख्तलिफ जो है फ़ारसी ज़बान की जितने भी चैनल्स हैं जो इस वक्त ईरान के लिए बड़े अहम तरीन माने जाते हैं और वो जो है इस वक्त और बड़े ज़राए में माने जाते हैं, उनमें इस तरह की बहसें इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। ऐसा महसूस होता है कि 2-3 दिन में इसकी कुछ हक़ाइक़ मज़ीद सामने आकर के रहेंगे। नाज़रीन ग्रामी, इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा है कि दुश्मन की क़यादत गज़ा की गलियों में अपने फ़ौजियों को ताबूतों में वापस भेज रही है ताकि उन कैदियों की बाक़ियात की तलाश की जा सके जिन्हें उसने पहले जानबूझकर निशाना बनाकर हलाक किया था। अबू उबैदा ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा कि नेतन्याहू अपने फ़ौजियों को बाक़ियात की तलाश के दौरान कैदियों की रिहाई के बजाय अपने फ़ौजियों को बंद गली में धकेल कर उन्हें कत्ल करवा रहा है। काबिज़ फ़ौज ने ऐलान किया कि इसका एक फ़ौजी गज़ा में 3 मुक़वी आबादकारों की लाशें तलाश करने के मिशन के दौरान मारा गया। इससे कबल गज़ा में सहयूनी कैदियों तक पहुँचने की नाकाम कोशिशों के दौरान सहयूनी अफसरान और फ़ौजी मारे गए थे, जिसके नतीजे में उनमें से बाज़ की मौत वाक़ई हुई, जबकि अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने 12 गज़ा की पट्टी पर इसराइली बमबारी के नतीजे में कैदियों की हलाकत का ऐलान किया था।
नाज़रीन गिरामी, UNRWA का एक बयान आया है, रफ़ा से बेदखल 8 लाख अफराद इस वक्त गैर महफूज इलाकों में रिहाइश पजीर हैं। UNRWA के कमिश्नर जनरल फिलिप लाज़ारिनी ने कहा कि इसराइली ऑपरेशन शुरू होने के बाद रफ़ा से अब तक 8 लाख अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो चुके हैं, मगर उनके पास कोई महफूज मकाम नहीं और वो हर वक्त ख़तरे में हैं। लाज़ारिनी ने एक्स पर मजीद कहा कि गज़ा में दैर अल-बलाह, खान यूनिस और अल-मवासी में नकल मकानी करने वाले इलाकों में पीने के साफ़ पानी की फराहमी या सफाई की सहूलियात नहीं हैं। UNRWA कमिश्नर ने कहा कि दावे के गज़ा में लोग महफूज रहते हुए या इंसानी बुनियादों पर नकल मकानी कर सकते हैं, ये झूठे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने पर किस कदर मजबूर कर रहा है जालिम दहशतगर्द सहयूनी ये दरिंदे, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में जो इस वक्त हमले हुए हैं जालिम दहशतगर्दों की जानिब से, उसका आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 70 मुसलमान शहीद हुए हैं। और इस तरह से जो है इन शहीदों की तादाद अगर देख ली जाए 35,456 तक पहुंच जाती है इस 24 घंटों के दौरान, जो मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त जो है बमबारी किया है जालिम दहशत दरिंदों ने। और 79,476 अफराद ऑफिशियली तौर पर ज़ख्मी होने की रिपोर्ट की जा रही है, जबकि जालिम दहशत सहनी दरिंदों के फ़ौजियों की हलाकतों का एतराफ़ इसराइल का मीडिया भी कर रहा है। और इसराइल ने माना है कि सिर्फ मई के महीने में 19 मई तक 24 जो है सहनी दरिंदे इस वक्त अफसर भी हैं और आबादकार की जो इस वक्त हमले हुए हैं उनकी हलाकतों का तादाद जो है वो 24 तक पहुंची है। अगर ऑफिशियली रिकॉर्ड के मुताबिक इसराइली मीडिया, इसराइली फ़ौजी मानती है कि उनके 24 अफराद या सहनी दरिंदे अगर जहन्नम हासिल हुए हैं, तो इसका मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान जो है सहनी दरिंदों का हुआ है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।